Welcome to T. Naveen Paul Ministries. टी नवीन पॉल मिनिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। Friends, once again we are here to meditate on the Word of God together. मित्रों, एक बार फिर से हम आपके साथ हैं कि परमेश्वर के वचन से मनन को करें। We have been regularly meditating on the book of Revelation. हम नियमित तौर से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन को कर रहे हैं And this is the 89th episode of our study. और ये हमारे स्टडी का 90 एपिसोड है। And the verse for today is Revelation chapter 22 verse 12 onwards. और आज के लिए जो वचन है वो प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 12वें वचन से आता है। And in the last episode we saw पिछले एपिसोड में हमने देखा that the world is going in its own way. कि दुनिया अपने रास्ते चल रही है And many people think that because this is God's world, it should not go the way it is going. और बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर का ये दुनिया है तो वो ऐसे नहीं चलनी चाहिए। God says the evil continue with evil, परमेश्वर कहता है कि जो बुराई करते हैं वो बुराई करते the रहेंगे, filthy continue with filthiness, जो मलिनता करते हैं वे मलिनता में बने रहेंगे, the righteous grow in righteousness, जो धार्मिकता में चलते हैं वो धार्मिकता में चलते रहेंगे, and the holy grows in holiness. और जो पवित्र है वो पवित्रता में बढ़ते रहेंगे। So in a nutshell, the evil remain evil and the good remain good. और यदि हम छोटी सी बात में देखें, सारांश में देखें, तो बुराई बुराई बढ़ती रहेगी और अच्छाई अच्छाई में बदलते And जाएगी। this is going to continue for a long time. और ये एक लंबे समय के लिए चलता रहेगा, Because God permits this to happen. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि ऐसा हो। But on the same time, He says the end is near. और क्योंकि वो उसी समय पे कहता है कि अंत जो है वो निकट है And it's not much time left. और बहुत कम समय जो है बचा नहीं है। He says, I am the Alpha and the वो Omega. कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। He's the beginning and the end. वो शुरुआत है और वो अंत है, Who began everything, जो हर एक बात को शुरू करता है He also concludes everything. वो हर एक बात को खत्म भी करता है। So, God is a God who begins the life परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो चीजों को शुरू करता है and He also ends or consumes everything. और वो हर एक बात को खत्म भी करता है। And that's why everybody should be careful and wise in the light of the Word of God. इसलिए परमेश्वर के वचन के प्रकाशन में सबको ध्यान पूर्वक चलना है, So that you remain wise and you grow in righteousness. ताकि आप बुद्धिमान बने रहो और धार्मिकता में बढ़ते रहो। See, the only way to reach heaven is to practice righteousness in this world. देखिए, एकमात्र रास्ता स्वर्ग तक पहुंचने का ऐसा है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता में चलते You हैं। need to be born again and pursue holiness if you want to reach heaven. आपको नया जन्म पाना है और पवित्रता के पीछे होना है। So you cannot leave the evil world to itself, तो आप बुरी दुनिया को बुराई में नहीं छोड़ सकते, but you have to emerge out as the holiness of God in this evil world. लेकिन आपको इस बुरी दुनिया में से परमेश्वर के जो है पवित्र जन बनकर निकलना है। And then in verse 12 he says, 12वें वचन में वो ऐसा कहता है, And behold, I am coming quickly. और देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। Now the end is near, he says, अंत बहुत निकट है, वो कहता and है, I am coming quickly. और मैं वापस से जल्दी आ रहा हूँ। If I don't come quickly, यदि मैं जल्दी नहीं the आता end never comes. तो अंत नहीं आएगा, And because the end is near, और अंत क्योंकि निकट है that's why I am coming quickly. इसलिए मैं जल्दी आ रहा हूँ। So we have to take the time scale of God which is upon this earth. तो हमें परमेश्वर के उस समय के मापदंड को लेना है जो पृथ्वी पर The चल रहा है। Bible says 1 year is equal to 1,000 years. 1 day is equal to 1,000 years, and 1,000 years are equal to 1 day. बाइबल कहती है कि परमेश्वर के लिए एक दिन 1,000 साल के समान है, 1,000 साल एक दिन के समान है। So what appears to be very long time for us, और जो हमारे लिए बहुत लंबा समय होता है, it's just a momentous thing for God. परमेश्वर के लिए एक क्षण भर का समय है। So he is not delaying everything, but he is there quickly standing at the door. तो वो हर एक चीज को जो है वो देरी नहीं कर रहा, लेकिन वो उस द्वार पर खड़ा हुआ है And he says, I come quickly. और वो कहता है कि मैं जल्द आता हूँ। So everybody wants God to come quickly. तो सब हर एक जन चाहते हैं कि परमेश्वर जल्दी आए। The evil ones also, because of their evil life, say there should be an end to it. और बुरे लोग भी चाहते हैं उनके बुराई के जीवन के लिए कि एक अंत हो जाए। Nobody can be happy with evil inside. कोई भी खुश नहीं रह सकता यदि उसके अंदर बुराई हो। And in the heart of hearts, everybody knows that there is going to be an end. अपने हृदय के हृदय में हर एक जन जानता है कि इस चीज का अंत होने वाला है। Even if this truth doesn't echo very frequently, but everybody knows that
there is a judgment. और यदि ये सत्य जो है उनके हृदय में बहुत प्रभाव नहीं डालता, लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि न्याय तो होना है। Because of the sin being rampant, the judgment, the consciousness of judgment is going dull in people. क्योंकि पाप इतना प्रबल है कि न्याय रखने की क्षमता जो है वो लोगों के अंदर कम होती जा रही है। Yet truth is truth. लेकिन सत्य तो सत्य है। And that's what Jesus is saying. और वैसा यीशु कहता है। See, if people are continuing in the way they are living, और क्योंकि यदि लोग अपने जीवन के अनुसार जैसा जीते हैं वैसे जीते रहेंगे, God says let it continue, but the answer to it is my coming back. परमेश्वर कहता है कि वो वैसा चलने दो, लेकिन उसका उत्तर जो है वो मेरा पलटा होगा। And those who believe in Jesus and say that he is coming quickly also look towards him for his coming. और जो लोग यीशु में विश्वास करते हैं, उसके आने की बाट जोते हैं, वो भी चाहते हैं कि यीशु जल्दी There आए। are two kinds of people in this world. इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, Those who are lost and do not know who is coming and when is coming, जो खोए हुए हैं और नहीं जानते कि कौन आ रहा है, कब आ रहा है। and God's people who are living in a living hope that Jesus is coming again. और वो लोग जो परमेश्वर में जीवित आशा में रहकर जीते हैं और जानते हैं कि यीशु आ रहा है। And he says that I'm coming quickly और वो कहता है कि मैं शीघ्र आऊंगा and my reward is with me और जो पुरस्कार है वो मेरे साथ है, to give to everyone according to his work. और उनके कामों के अनुसार उन्हें प्रतिफल मिलेगा। Now here Bible says that God is going to repay back everybody, और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हर एक जन को पलटा देगा, and that is a payback. और वो एक जो है पलटा देने होगा। See, whatever you do, you have to take a payback. देखिए, आप जो भी काम करेंगे आपको उसका पलटा मिलेगा। Romans 6:23 says, और रोमियो 6 और उसके 23 वचन में ऐसा लिखा the है, wages of sin is death. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। So if you sin, you get the wages. क्योंकि यदि आप पाप करते हैं आपको उसकी मजदूरी मिलेगी। You cannot avoid the payback. आप परमेश्वर के पलटे को जो है इनकार नहीं कर सकते। There are so many people who think that they'll live in sin, but the death which is the wages is not going to come upon them. बहुत से लोग सोचते हैं कि वो पाप में रहेंगे, लेकिन जो मृत्यु है, जो कि पाप की मजदूरी है, वो उन पर नहीं आएगी। But the Bible says the wages of sin is death. बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु। But the grace of God, the gift of God is eternal life in Jesus लेकिन Christ. परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो अनंत का जीवन है यीशु में। So he says, I have to give a payback to everybody. वो कहता है कि मुझे हर एक जन को पलटा देना है। For good I am good, अच्छे के लिए मैं अच्छा हूँ, and for the bad I am a crooked God. और बुरों के लिए तो मैं बुरा परमेश्वर हूँ, And I'll give them in their own terms. और मैं उन्हें उनके हिसाब से दूंगा। This is what God says in his word. ये परमेश्वर अपने वचन में कहता है। Let's turn to Isaiah chapter 40 and verse 10. See what it says. और आइए हम खोलें यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 40वां अध्याय और उसका 10वां वचन, जहाँ पर इस See, you प्रकार have to pay back. कि तुम्हें पलटा देना पड़ेगा। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा He है। is coming in all his might and power. वो अपने पूरे सामर्थ और अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वो उसके पास है, और जो बदला देने का है वो उसके हाथ में। See the wages and the return. देखिए, जो मजदूरी और बदला है He is coming with that. वो उसके साथ आ रहा है। Now, while speaking to the people in the Sermon on the Mount, और लोगों से बात करते हुए इस पहाड़ी उपदेश में Jesus says everything is accountable. यीशु कहता है कि हर एक बात जो है लिखी जाती है। In the law of Moses, the works that people did was accountable. और मूसा की संहिता में जो काम लोग करते थे वो लिखे जाते थे। But in the dispensation of Jesus Christ, लेकिन यीशु के आने के बाद even your thoughts will be judged. आपके विचारों के द्वारा भी न्याय होगा। If you think evil of anybody, यदि आप किसी के बारे में बुरा विचार, that thought is recorded वो विचार रख लिया जाए and you will be paid back accordingly. और आपको वैसा ही पलटा दिया जाएगा। That's why we should go for the gift of God that is eternal life. इसलिए हमें परमेश्वर के उस वरदान को लेना है जो कि अनंत का जीवन है। In Isaiah he says, let us settle our scores. और यशायाह में ऐसा लिखा है कि आइए हम अपना वाद विवाद कर ले। If your sins are crimson red, I'll wash them white. और यदि तुम्हारे पाप जो हैं वो लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उसे धोकर श्वेत कर So everybody who is born upon this earth is conscious of the payback that he is going to get. हर एक व्यक्ति जो पृथ्वी पर जन्मा है वो उस पलटे को जानता है जो परमेश्वर देने वाला है। And that burden of payback is always on the head of a person. और उस पलटे का बोझ उस व्यक्ति के ऊपर हमेशा बना रहता है। And because of this,
Everybody wants the sins to be forgiven. और क्योंकि ये ऐसा बोझ है इसलिए हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके पाप माफ कर दिए You see, you cannot enjoy your sin because you have a burden of sin upon you. देखिए, अब पाप को जो है आनंद नहीं ले सकते उसका, क्योंकि आपके ऊपर पाप का बोझ है। You are conscious of the payback that is going to come to you. आप उस बोझ के तले दबे हुए और आप उसे जानते हैं कि आपके ऊपर एक पलटा आने वाला है। That's why God says that I am going to pay back everybody, so I am coming quickly. इसलिए यीशु कहता है और परमेश्वर कहता है कि मैं हर एक के पाप का जो है उसे बदला दूंगा, और इसलिए यीशु आएगा। So the works of the people are recorded. लोगों के काम लिखे जाते हैं। And we have already studied in the previous chapters of the book of Revelation. और हमने पहले ही प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पुराने अध्यायों में देखा है। And the details are given. और उसके बारे में जो है चित्रण वहाँ पर दिया गया। The books are opened. पुस्तकें खोली गई। And the works of the people are recorded in और them. लोगों के काम उसमें लिखे गए थे। And then we see another book opened which is called the book of life. और फिर हम एक और पुस्तक को खुलते हुए देखते हैं जो कि है जीवन की पुस्तक। And whose name is not written in the book of life will not get into heaven. और जिसके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। So whatever good works you do, the so-called good works are not going to help you. तो जो कुछ भी भले काम आप करते हैं वो सारे भले काम आपकी मदद नहीं करेंगे। But if you are born into the kingdom of God, लेकिन यदि आप परमेश्वर के राज्य में जन्मे हैं, you are scheduled for the good works which God has already planned for you. आप उस अच्छे काम के लिए बनाए गए हैं जो प्रभु ने आपके लिए रखा। According to Ephesians 2:10, you are born to fulfill the works which were already scheduled for you before you were born. और इफिसियों 2:10 के अनुसार आप उस भले कार्य करने के लिए सृजे गए हैं जिसे परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले आपके लिए रख दिए। So the works precede you. तो आपके काम आपसे पहले आते हैं। So Christian life is very easy. मसीह जीवन बहुत आसान है। Love the Lord परमेश्वर से प्रेम and रखें see how His works और देखो कि कैसे उसके काम are fulfilled in your life. आपके जीवन में पूरे होते हैं। So God is a happening in your life. परमेश्वर आपके जीवन में घटित हो रहा है And you are seeing God's work being performed in you. और आप देख रहे हैं परमेश्वर के काम कैसे आपके अंदर। And if your name is written in the book of life, यदि आपका नाम जीवन की पुस्तक में है you will be rewarded. आपको पुरस्कार मिलेगा। But no karma without Christ, लेकिन यीशु के बिना कोई भी काम जो आप कर्म करते हैं it's not going to help you. वो आपकी मदद नहीं। It's a very clear statement. बहुत ही स्पष्ट वाक्य है। And this is a statement which is different from all the philosophies and thinking of this world. और ये जो वाक्य है ये दुनिया की सारी धारणाओं से अलग है। A fallen man thinks that his good works are going to help him out. गिरा हुआ मनुष्य सोचता है कि उसके भले काम उसकी मदद करेंगे। But the Bible teaches that the sin which is in a man is enough for him to take him to hell. बाइबल कहती है कि जो मनुष्य का पाप है वो काफी है उसे नरक तक ले जाने। It's not written that the wages of sins is death, और ऐसा नहीं लिखा है कि पापों की मजदूरी मृत्यु है। or the wages of even a single sin is death. एक अकेले पाप की मजदूरी भी मृत्यु है। That's why in the book of James it is written, इसलिए याकूब की पुस्तक में ऐसा लिखा है, if we follow all the laws, यदि हम सारे जो नियम है उनका पालन करें, but if fail in one, लेकिन यदि एक को भी छोड़ दें, we fail in all. हम सबको छोड़ दें। That's why a perfectionist approach is required, इसलिए एक सिद्धता की धारणा जो है हमें दी गई है and which is available in Jesus Christ. और जो हमें यीशु में दी जाती है। So when we know that Jesus is coming quickly, तो हम जब जानते हैं कि यीशु जल्दी आने वाला है, let the people prepare for him quickly. आइए हम जल्दी से उसकी तैयारी। Why to waste time? समय को क्यों बर्बाद करें? Let us be more quick in becoming like Jesus, आइए हम बहुत ही जल्दी यीशु के समान because he is coming quickly with his reward. क्योंकि वो बहुत जल्द अपने पुरस्कार के साथ आ रहा है And he says, my reward is with me. और वो कहता है कि मेरा पुरस्कार मेरे साथ है। Intentionally, he says that my reward is with me. और वो स्वाभाविक रीति से कहता है कि तुम मेरा पुरस्कार मेरे पास है। See, he is such a good God, he wants to reward everybody. देखिए वो कितना भला परमेश्वर है, हम सभी को पुरस्कार देना चाहता He doesn't want to punish anybody. है, किसी को दंड नहीं देना चाहता। God gave his son not to punish the world, but to save the world. परमेश्वर ने अपना पुत्र इसलिए नहीं दिया कि दुनिया नाश की ओर जाए, लेकिन दुनिया बचाई जाए। But those who do not come to him live in the anger of the Lord. लेकिन जो लोग उसके पास नहीं आते वो उसके जो है एंगर में जीते हैं। That's why he says, I am coming to pay back you everything. इसलिए वो कहता है कि मैं आता हूँ और एक बात का पलटा लूंगा। My dear brothers and sisters, no scores are going to be unsettled. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कोई भी चीजें जो है आपने करी है वो ऐसे नहीं जाएंगी। Everything has to be settled if Jesus is coming. हर एक बात का परमेश्वर खाता रखेगा यदि वो आएगा। Don't think that some things will be accounted for and some things not.
ऐसा ना सोचे कि कुछ बातों का खाता होगा और कुछ बातें छोड़ दी जाएगी। When I was in spiritual mood, religious mood, my works are recorded. When I was in worldly mood, they are not recorded. जब मैं आत्मिक दृष्टिकोण में था तो मेरे काम लिखे गए, जब मैं संसारिक रीति से चलता था तो मेरे काम नहीं लिखे। See, Jesus came into this world. देखिए यीशु इस दुनिया में आया, He did not commit even a single sin. उसने एक पाप भी नहीं करा And his expectation from us is the same. और उसकी अपेक्षा जो हमारे साथ है वो भी वही है। That's why he wants to reward us with eternal life. इसलिए वो हमें अनंतकाल के जीवन से आशीष देना And he चाहता है says we have to be prepared for it. और वो कहता है कि हम इसके लिए तैयार हों। Isaiah 62:11. और यशाया उसका 62:11 में ऐसा लिखा है। Again the Bible says that he is going to take an account. और बाइबल फिर से कहती है कि वो जो है हर एक चीज का खाता रखेगा। See what he says. देखो यहोवा ने पृथ्वी के छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धारकर्ता आता है, देख जो मजदूरी उसको देनी है वो उसके पास है और उसका काम उसके सामने है। See, this is preached all throughout the world. देखिए पूरी दुनिया भर में प्रचार कर दिया It is गया। declared everywhere हर एक जगह इस बात की घोषणा कर दी है that the Lord is coming. कि परमेश्वर आ रहा है And the wages are there with him. और उसके काम उसके साथ हैं। There is no human being who will not be paid back. कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसका पलटा नहीं लिया जाएगा। Everybody will be given the wages. हर एक व्यक्ति को उसकी मजदूरी दी जाएगी। Good people will get the reward. अच्छे लोगों को पुरस्कार मिलेगा। They will shine like stars in heaven. परमेश्वर के राज्य में वो तारों के समान And God will say, "Come, my good people, you loved me and you served me, come into heaven." और परमेश्वर कहेगा कि मेरे भले सेवक तुम आओ, तुमने मुझसे प्रेम रखा, मेरी सेवा करी, मेरे राज्य में आओ। And to the evil he say, "Go to hell." और बुरे से वो कहेगा कि तुम नरक में जाओ। See, Lazarus and the rich man were there. देखिए लाजर और अमीर आदमी था। Lazarus didn't have anything. लाजर के पास कुछ भी नहीं, He had a sickness and ailment in his body. उसके शरीर में रोग था। He was on the receiving end. There was nobody to take care. उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं था, वो भीख मांगता था। But the rich man was in his own pride. लेकिन जो अमीर आदमी था वो अपने घमंड में था And he could not put his eyes on Lazarus. और वो अपनी आंखों को लाजर की ओर नहीं रखता था। So he was happy if Lazarus is treated like a dog. तो उससे खुशी मिलती थी यदि लाजर को कुत्ते समान रखा जाए, Because what dogs used to eat, the remainder Lazarus used to eat. क्योंकि जो कुत्ते खाते थे उनका भोजन, बचा हुआ भोजन लाजर खाता था। You see, Lazarus could not compete with dogs देखिए जो लाजर था वो कुत्तों के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता because he was a sick man. क्योंकि वो तो बीमार व्यक्ति था। So dogs prevailed over him. तो कुत्ते उस पर प्रबल हुए So whatever remained from the dogs, Lazarus used to eat. और कुत्तों का जो जूठन बचता था वो उसे खा लेता था। What was the rich man's sin? और अमीर आदमी का पाप क्या था? He could not see Lazarus. वो लाजर को देख नहीं सका। He could not see a human being around him वो एक इंसान को अपने आसपास नहीं देख who सका was living almost like a dog. जो कि कुत्ते समान जिंदगी जी रहा था। And God says, "I'll pay back." परमेश्वर कहता है मैं पलटा दूंगा। And we don't read of many gross sins of the rich man. और हम उस अमीर आदमी के बहुत गंदे पापों के बारे में बात नहीं We करते। do not know how he lived. हमें नहीं पता उसका जीवन कैसा था, But his luxuriousness लेकिन उसकी जो अमीरी थी and not looking at people with God eye was his sin. और परमेश्वर की दृष्टिकोण के साथ लोगों को जो देखना नहीं था वो उसका पाप था। God says, "I'll pay back." परमेश्वर कहता है मैं पलटा लूंगा। Every thought, word and action I'll pay back. हर एक मन, वचन, कर्म से मैं आपका पलटा लूंगा। In Romans, the Bible says, रोमियो की पुस्तक में बाइबल ऐसा कहता है, any work done without faith is a sin. हर एक बात जो है, हर एक काम जो है बिना विश्वास के किया जाता है वो पाप है। So you cannot define sin. तो आप पाप की परिभाषा नहीं दे A सकते। godly person should never try to define sin जो प्रभु से भरे हुए लोग हैं वो कभी भी पाप की परिभाषा उन्हें नहीं देनी चाहिए, because it's very subtle and very fine. क्योंकि ये बहुत ही आसान सा है और बहुत ही जो है बारीकियों से हमें बताया गया है। So we have to be very careful to cling to the Lord. हमें बहुत ध्यान रखना है, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। You do not know many thoughts, words and action which you think are right could be wrong. और आप बहुत से विचार, कर्म, सोच जो करते हैं और आपको लगता है कि वो सही है लेकिन वो गलत है। That's why the psalmist says, "Try my heart and let me see if I have anything wrong in me, इसलिए भजनकार कहता है कि मेरे हृदय को तू देख और जांच कि उसमें कुछ गलत तो नहीं पाएगा, so that I am not paid back in the same coin, ताकि मैं दुष्ट के समान मुझे पलटा ना मिले, but I get your grace." कि मुझे आपका अनुग्रह। Turn with me to Psalm 28 and verse 4. और मेरे साथ निकाले भजन संहिता उसका 28वां अध्याय
और उसका चौथा वचन, where God says, I have come और जहाँ परमेश्वर ऐसा कहता है कि to मैं pay you आया back. हूँ कि मैं तुम्हारा पलटा ले सकूं। 28 verse 4. 28 और उसका चौथा वचन, उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर, उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे। Yes, he says now, not only their works, but their attitude towards works. और वो कहते हैं कि न केवल उनके काम, लेकिन उनके काम के प्रति उनका आचरण। See, if you think evil, you do evil. यदि आप बुरा सोचते हो तो आप बुरा करोगे। So God, the psalmist says, punish them according to, not only according to their works, but their evil thoughts. और भजनकार कहता है कि न केवल उनके विचार के द्वारा, लेकिन विचार के द्वारा जो उनका आचरण है उसके अनुसार भी उनका न्याय है। Now Bible says in Jeremiah, they honor me with their lips, और यिर्मयाह की पुस्तक में बाइबल कहती है कि वो होठों से तो मेरा आदर करते but हैं, their hearts are far away from me. लेकिन उनके हृदय मुझसे बहुत दूर है। So the Bible teaches us. बाइबल हमें आज सिखाती है। We also need to take care that we always live a heaven-worthy life. और हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि स्वर्ग के अनुसार हम जीवन जीने वाले हों। And every believer always waits for Jesus to come. हर एक विश्वासी यीशु के आने की प्रतीक्षा करे, But everybody who is sin never wants anybody to come. और हर एक जन जिसने पाप किया है वो नहीं चाहता कि कोई आए। He wants to be in sin forever and ever. वो चाहता है कि हमेशा पाप में बना रहे, And he wants to be in that situation forever and ever. और वो हमेशा चाहता है कि वो उस परिस्थिति में बना रहे। But even the intention, the evil intention of the people will also be judged. और लेकिन हर एक जन जिसका विचार भी बुरा है उसे भी परमेश्वर उसका भी न्याय करेगा। See, Saul was looking after the clothes of the people, और साउल जो था वो लोगों के कपड़ों के साथ देख while रहा था। people were stoning Stephanus. जब लोग जो है स्तिफनुस को पत्थरबाह कर रहे थे, Paul did not throw even a single stone. और पौलुस जो साउल कहलाता था उसने एक पत्थर भी नहीं फेंका, Yet the Bible says he was included in that crime. लेकिन फिर भी बाइबल कहती है कि उस जुर्म में वो भी हिस्सेदार था। And the Bible designates him as a sinner because he killed और Stephanus. बाइबल उसे एक पापी कहलाती क्योंकि उसने भी स्तिफनुस को मारा। You don't know how many wrongs there are in your lives. आप नहीं जानते आपके जीवन में कितनी बातें गलत And there are so many believers who say that I did not get hands-on involved in this bad बहुत से thing. विश्वासी है जो कहते हैं कि मैंने हाथों से तो इस बुरी बात में नहीं था। That's why in the legal system also the judges see who is behind this crime. और इसलिए जब हम देखते हैं, न्यायाधीश लोग भी देखते हैं कि इस जुर्म के पीछे कौन है। So there are people who plot and there are people who execute. और हम देखते हैं कि कुछ लोग तो षड्यंत्र रचते हैं और कुछ लोग उस काम को करते हैं। But the judgment system includes both as culprits and brings them to book. और क्योंकि न्याय का जो हमारा सिस्टम है वो ऐसा है कि वो दोनों को दंड देता है। So the Bible says that we have to be very careful about the judgment. बाइबल कहती है कि हमें न्याय के प्रति बहुत ही सावधानी And the Bible teaches the judgment is going to begin from the righteous. और बाइबल कहती है कि जो न्याय है वो धार्मिक व्यक्ति से शुरू होगा। And that's why we have to be very careful. इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है। We have to be able to lift our heads when Jesus comes. और हमें इस काबिल बनना है कि जब यीशु आए तो हमने सरों को ऊपर See, उठाना है। there will be two kinds of people. देखिए दो तरह के लोग होंगे। One kind of people will say we are not able to see his face. और एक तरह के लोग कहेंगे कि हम उसका चेहरा नहीं देख पा रहे, Let the mountain and the rocks fall on us. और वो पहाड़ और वो पत्थर हम पर गिर जाए। It's better we die before he comes. इससे बेहतर है कि हम मर जाए इससे पहले वो आए। But on the other hand, Jesus says, लेकिन दूसरी ओर यीशु कहता है, when you see that time coming closer, और जब तुम उस समय को आते देखो, lift up your head अपने सरों को ऊपर देखो, because your deliverance is क्योंकि near. तुम्हारा छुटकारा निकट है। So the attitude that we have towards the coming of Christ, जो हमारा आचरण है यीशु के आने की ओर, we have to be very specific about it. हमें उसके प्रति बहुत ही He सावधानी is बरतनी coming quickly. है। वो बहुत जल्द आएगा। You hardly have any time left. आपके पास बहुत थोड़ा समय बचा है। Your life might appear to you as a long time. आपका जीवन ऐसा लगता है कि बहुत लंबा है। Psalmist says a man might live for 60 or even to 70 years. और भजनकार कहता है कि मनुष्य 60 या 70 वर्ष तक जी ले, But everything is a vanity for him लेकिन हर एक बात जो है उसका कोई अर्थ नहीं है, because it passes away क्योंकि सब कुछ बीत जाता है and you gain nothing. और आपको कुछ नहीं मिलता। So the life that we have, तो जो जीवन हमारे पास है, however long it may be, भले कितना ही लंबा क्यों ना हो, it is vain.
वो सब कुछ बर्बाद है। But if you are living in the Lord, लेकिन यदि आप प्रभु में जी रहे हैं even the moments that you spend with the Lord और जो थोड़े क्षण आप प्रभु के साथ बिताते are हैं much, much better than years you waste in this world. और बहुत बहुत अद्भुत है उन सालों से जो आप दुनिया में गवाते हैं। Turn with me to Jeremiah 17 and verse 10. और मेरे साथ यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17वां अध्याय खोलेंगे और 10वां वचन। Let's see what the word says there. और यहाँ पे देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। So he says that I am scanning your heart. वो कहता है कि मैं तुम्हारे हृदय को जांचता हूँ। And the Bible says take care of the heart the most because it's the most deceptive thing within you. और बाइबल कहती है कि सबसे ज्यादा अपने हृदय की चौकसी कर क्योंकि सबसे बड़ा धोखा देने वाला So apparently clear that the biggest battle in the life of a person is within his own life. सबसे स्पष्ट बात यह है कि सबसे बड़ा युद्ध जो एक इंसान के जीवन में होता है वो उसके अपने हृदय के साथ। And if you win over your heart, you have won everything. और यदि आप अपने हृदय के ऊपर जीत लेते हैं तो आप हर एक बात। Again, this is a statement which is made by so many people in this world. और फिर ये एक ऐसा वाक्य है जो बहुत लोगों के द्वारा बोला गया है। Christians and un-Christians. और मसीहत को मानने वाले और जो मसीहत को नहीं They said मानते। winning on the heart is a very big conquer. और वो कहते हैं कि अपने हृदय पर विजय होना बहुत बड़ी विजय है। But it's not possible in this world. लेकिन इस दुनिया में वो संभव नहीं है। Only one who is in Christ can win over. जो मसीह में है वो अपने हृदय के ऊपर जीत सकता है। So he waits for the reward of God. और वो परमेश्वर के पुरस्कार की बाट जोता है। But one who doesn't get washed of sins, लेकिन जो व्यक्ति अपने पाप को से नहीं धो पाता then has to wait for a very bad judgment time. उसे परमेश्वर के एक बड़े न्याय की प्रतीक्षा करना है। So you have to know whether you are in the Lord or not. तो आपको जानना है कि आप प्रभु में है या नहीं। Because Bible says we will be sitting as judges along with the Lord and judging the world. और बाइबल कहती है कि हम न्यायी होकर परमेश्वर के साथ बैठेंगे और दुनिया का न्याय करेंगे। So if you have that spirit that you are going to sit and judge the world, और यदि आपके पास ऐसा आत्मा है जो कहता है कि आप दुनिया का न्याय करोगे, you have administrative and judicial power in you. आपके पास अधिकार रखने का और न्याय करने का सामर्थ्य है आपके। You are a beautiful person in God, आप प्रभु में बड़े खूबसूरत जन हैं incomparable. और आपकी कोई तुलना नहीं कर सकता। You are a wonderful person in और आप Christ. बहुत अद्भुत व्यक्ति है परमेश्वर Continue in it और इसी में बने रहें। and be obedient to the Lord. परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहें। He is coming quickly. वो बहुत जल्द आ रहा है। Prepare yourself to meet the Lord. अपने आप को तैयार कर लो यीशु से। And let your garment be washed in the blood of Christ, और आपके वस्त्र यीशु के लहू से धो दिए जाएं so that you are holy and presentable before Him. ताकि आप उसके सामने पवित्र हो और ऐसे बने And से with all accolades and congratulations, He welcomes you in the kingdom of God. और बड़ी प्रशंसा के शब्द के साथ और बड़े अद्भुत शब्दों के साथ वो आपका स्वागत करें। Would you go there? क्या आप वहां जाएंगे? Are you ready to be worthy of the Lord? क्या आप तैयार हैं कि आप प्रभु के योग्य बन जाएं? He's inviting you. वो आपको निमंत्रण दे रहा है। Repent of your sins. अपने पाप से पछतावा करें। Repent of your worldliness. अपनी दुनियादारी से तौबा करें। Make your heart a heart of Jesus, अपने हृदय को यीशु का हृदय बनाओ so that you precisely know what righteousness is ताकि आप बहुत अच्छे से जानो कि धार्मिकता क्या है and become like Christ. और यीशु के समान। May the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you and God bless you. धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।